Welcome to Boral News. No hope for betterment of National Highway 54E or East-West Corridor. 25 kilometers stretch road of National Highway 54E, also known as East-West Corridor, has no hope for betterment as no development in the road is seen after more than a decade since starting of the project. On Tuesday night, two vehicles got stuck near Mungro village, heavily affecting the traffic movement in the area. The drivers of the stuck vehicles alleged that the company engaged in the work has been neglecting those areas. They also said that the company should at least engage an excavator to lift the stuck vehicles. Recently, on 10th January this year, the NHAI regional officer Guwahati awarded Hyderabad-based construction firm Ratna Infrastructure for maintenance of the work at the cost of Rs 54.27 crores. Sources said that the construction firm had engaged another Lakshmi Motors, a Silchar-based construction firm, at subcontract, despite Lakshmi Motors had earlier done substandard in the road maintenance, which the consequence were suffered by villagers and are now afraid in compromising of the work quality. "14 years has passed since construction of National Highway 54E road from Haflong to Silchar, also known as East-West Corridor, that started in 2006. However, the National Highway Authority of India has not been able to make the 25-kilometer stretch road from Haflong to Haringajau in Dima Hasao movable for even a small vehicle, and leave alone calling it a national highway. In the year 2011, NHAI engaged JKM Infra for the construction of the 25-kilometer stretch highway. After working for 5 years despite completing the works, the said company took crores of rupees by providing fake bills and documents. The NHAI suspended and blacklisted JKM Infra from works and remanded all their machineries. The NHAI also filed a case with Delhi High Court for providing fake bills and documents and non-completion of work. At the time, the companies engaged in the Hill District had a common excuse of extortion by extremist group, and after that they gave excuses of environmental issues. People have alleged that the contractor engaged in the construction work and NHAI is carrying out a big corruption, as a result of which the so-called highway has turned into a terrific road.
जी हाँ, मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ अपना मेयांखरो में, जो आपका NH54 रूट में। ये NH54 सिर्फ नाम के लिए NH54 है, ये NH54 है नहीं, ये तो कोई नरक है। ये रोड में करीबन पर डे हज़ारों गाड़ी चलते हैं, मगर बारिश के सीज़न में ये रोड एक नरक बोल सकते हैं आप। ये रोड में जो गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी यहाँ से जा रहा है, वो गाड़ी का जो ड्राइवर वगैरह वो अपना लाइफ लाइन को रिक्स में लेके चला रहा है। इसमें इसका पूरा एक प्रूफ है जो आप आज हम जो दिखाए है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे कुछ गाड़ी चालक है, उनसे हम लोग बात करेंगे और बात करके आप जो जानेंगे जो वो लोग एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या फेस कर रहा है और क्या वो लोग का लाइफ लाइन है और क्या वो लोग का है। अच्छा भैया, आप क्या बोलेंगे, ये रोड कब से ऐसा है? ये तो रोड हम लोग का देखिए ना 4 साल से चला रहा है। इसे सीजन में ठीक है, दिन में वो लोग जैसे कंपनी काम करता है, शाम होने से छुट्टी है। कोई गाड़ी उधर गिरता है, कोई गाड़ी इधर गिरता है, कोई गाड़ी इधर कैप्साइड होता है, कोई गाड़ी इधर कैप्साइड होता है। वेजिटेबल गाड़ी दुनिया भर चलता है। हर दिन ये रोड पर वेजिटेबल का गाड़ी कम से 10 से 15 दिन गाड़ी जाता है, लेकिन वो लोग कोई कंपनी का रेस्पॉन्स नहीं है। आप सोचता नहीं कि ये सरकार का और कंपनी का पूरा नेगलेंस है? ये तो अभी कंपनी नेगलेक्ट कर रहा है। वो ये कंपनी अभी तो ये लोग रेस्पॉन्स होने से तो इधर में कोई एक जेसीबी रखना है, नाइट ड्यूटी वाला रहना है। अभी नाइट ड्यूटी रहने से 10 मिनट का काम है, ये गाड़ी ठेल देने से हम लोग वेजिटेबल गाड़ी निकल जाने वाला है। इधर में देखिए ना पैसेंजर गाड़ी दुनिया भर है। अभी सूखा माल होने से तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग वेजिटेबल गाड़ी चलाता है। ये गाड़ी सुबह पर नहीं पसंद से क्या होगा, ख़त्म है, फेंकना है माल। अब ये रोड में कब से आप चला रहे हैं? हम ये 5 साल हो गया ये रोड में चला रहा है। और कब कितना ठीक था और कितना खराब? ये तो ऐसे दाल सीजन में तो ठीक है, कोई स्लिप नहीं है। तो दाल सीजन में ऐसे होता है। तो वो लोग जो कंपनी है वो लोग जगह जगह में, सब जगह में तो खराब नहीं है, जगह जगह में खराब है। लोग जैसे भी रखना है ना। अभी तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। अभी भी देख रहे हैं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अभी वो गाड़ी 4 बजे से इधर खड़ा है, इधर से काल से वो गाड़ी खड़ा है, वो गाड़ी आया कैप्साइड हो गया। मेरा वेजिटेबल गाड़ी 4 गाड़ी खड़ा है। ये गाड़ी कब ऐसे हुआ? ये तो 4 बजे, तो 4 बजे 4:30 बजे जैसे कैप्साइड हो गया। अभी देखिए वो गाड़ी छोटा गाड़ी चलता है, तो हम लोग वेजिटेबल गाड़ी तो खत्म। अभी गाड़ी हम लोग रात नहीं पहुँचेगा, गाड़ी तो माल नदी में फेंकना है। आप सोचता नहीं ये सरकार जो अभी का सरकार तो, लेकिन ये तो सरकार पैसा देना है, कंपनी को पैसा देना है, लेकिन इधर कंपनी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मतलब ये कंपनी का पूरा नेगलेंस है? हाँ, कंपनी का नेगलेंस है। कंपनी का कोई रिस्क नहीं लेता है। 4 बजे गाड़ी खड़ा है, उधर में फोकलन खड़ा है, लेकिन वो मदद नहीं कर रहा है हम लोग का। गाड़ी पूरा पास के बैठ रहा है 4 बजे से। अभी तो वो लोग का कंपनी का लॉकडाउन में कोई खाना नहीं है, कुछ नहीं है। ड्राइवर लोग किधर जाएगा? उधर लॉकडाउन। रोड पर एनसील में तो लॉकडाउन चल रहा है ना। नीचे उधर डिडक्सरा में बोलता है एनसील में मत नीचे उतरो, आपका माना दिशा में बोलता है मत उतरो। अब इधर आके फंसा है, कोई खाना कहाँ मिलेगा? कोई खाली एक पानी मिलता है एनसील में। मतलब आपको एक तो ऊपर से लॉकडाउन है और ऊपर से रास्ता का ये हालत है। आपको पूरा प्रॉब्लम? हाँ, फिर भी हम लोग वेजिटेबल का गाड़ी चलाता है और रिक्शा गाड़ी है, जाना है तो हम लोग क्या करेगा? जी हाँ, यही है एक्चुअल फैक्ट। जो सरकार बोलते हैं कि हम उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, क्योंकि ये रास्ता अभी से नहीं, ये काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ा है। ये रास्ता ड्राई सीजन में किसी तरह चलने के लायक होता, लेकिन बारिश के सीज़न में ये रास्ता कोई हालत ही नहीं जो चलने के लिए। जो भी गाड़ी चलाता है अपना लाइफ लाइन, अपना रिक्स लेके चलाता है। सिर्फ सरकार बोलते कि उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, लेकिन हाफलोंग से लेकर सिलचर तक का रास्ता कब ये सरकार प्रकृति में लेके आएगा और कब ये रोड कंप्लीट होगा, वही देखने का लायक। मैं मेयांखरो से पंकज टिमुंग, बोराइल न्यूज़।